Hello students, today we will discuss about the helium neon laser. We know that helium neon laser is a 4-level laser. This one is first time fabricated by Jawan in 1961 and we know that it is a first gas laser. Today in today lecture we will explain its working, construction, working and advantage of a 4-level laser in spite of using a 3-level laser. So let us start our today discussion with its construction of a helium neon laser. While explaining the construction of a helium neon laser, we will construct a resonant cavity. Uh, this one selected portion represent a resonant cavity, which one in which we take a chamber, which one is fitted with two type of mirror M1 and M2 mirror. M1 mirror is fully silvered mirror and M2 mirror is partially silvered mirror filled with the two inert gases helium and neon. These helium and neon are taken in the ratio of 10 is to 1 and some books write this one optimum ratio 7 is to 1. Why this one 7 is to 1 or 10 is to 1 ratio is selected for the helium neon laser? Later on I will explain you with the help of energy level diagram. These one gases are taken at a pressure of 1 torr. 1 torr को मैंने आगे convert कर रखा है 1 mm of mercury 133 pascal and 133 10 is to power minus 5 newton per meter square. Now the question arises why the pressure is selected as a 1 torr. This one is the most suitable pressure for achieving, or we can say to attain the population inversion. Population inversion को बनाए रखने के लिए ये प्रेशर सबसे ज़्यादा सूटेबल है और we know that कि population inversion is a necessary condition for laser action. So to attain a population inversion we will be use pumping. Pumping is that one process in which the ground state atoms are shifted to excited state with the help of external energy source. That one energy source may be optical lamp, that one may be chemical pumping, that one may be electrical discharge pumping. Out of these three type of pumping, in today discussion we will use electrical discharge pumping. Means we can say electrical discharge pumping is most suitable pumping for the helium neon gas laser. And in the last one lecture solid state type laser means ruby laser, we have used the optical pumping. Optical pumping is best or suitable for the solid state laser and electrical discharge pumping is most suitable for gas laser. Optical pumping can't be used in case of a helium neon laser because हीलियम नियॉन लेज़र की केस में आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या फिर हम यूँ कहें कि गैस लेज़र के केस में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो शार्प होते हैं बट सॉलिड के केस में इट आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्मेट ऑफ ए बैंड. सो here we have written कि optical pumping would be very inefficient for the gas laser because the gas atoms are characterized by a sharp energy level. ये रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. तो ठीक है, तो इसके केस में हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के केस में हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोड को हाई टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे और जैसे ही हाई टर्मिनल वोल्टेज इसके थ्रू कनेक्ट की जाती है यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा विच विल आयनाइज द गैस. गैस को आयनाइज करेगा, जो इसके आयन बनेंगे वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और फर्दर एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे और उनको भी आयनाइज कर देंगे या फिर हमारे पास they will supply energy to shift atom present in the ground state to the excited state. In this they will support the population inversion. Population inversion is that one condition at which the number of atom present in the excited state are more as compared to the ground state. Okay, this one is all about it, the construction of a helium neon laser. Now to explain the working of a helium neon laser, let me show you a energy level diagram. This one energy level diagram have bifurcate into two parts. One part is this one sorry related to helium energy states, this one,
and second one portion is this one is related to neon. तो हीलियम वाले पोर्शन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, F1 लेवल, F2 एंड F3। F1 लेवल आपके पास हीलियम का ग्राउंड लेवल है, F2 और F3 आपके पास इसके एक्साइटेड स्टेट लेवल्स हैं, और इनको हम मेटास्टेबल स्टेट भी कहेंगे। मेटास्टेबल स्टेट वो होती है जहाँ पे एटम ज़्यादा टाइम के लिए रिजाइड करता है, आपके पास रहता है, ठीक है। अब हमारे पास ये E1 आपके पास ग्राउंड लेवल है नियोन से रिलेटेड, एंड E4 एंड E6 मेटास्टेबल स्टेट रिलेटेड टू नियोन एटम। तो बाहर से जब हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, आयनाइजेशन हुआ, उससे जो कैटायन और एनायन प्रोड्यूस हुए थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेट अस सपोज हीलियम एटम के साथ स्ट्राइक करता है। हीलियम एटम इनिशियली कहाँ पे प्रेजेंट है, F1 लेवल के अंदर प्रेजेंट है। अब इनके साथ स्ट्राइक करके वो हीलियम स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हीलियम स्टार एटम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, या तो F2 या F3 के अंदर। F2 और F3 में प्लस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन स्टार था ये कुछ काइनेटिक एनर्जी थी इसके अंदर, और इसके अंदर आपके पास एनर्जी लूज कर चुका है ये। तो इसने काम क्या किया, हीलियम नॉर्मल को हीलियम स्टार में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हीलियम विल शिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड लेवल। अब आपके पास हीलियम के जो एक्साइटेड स्टेट वाले एटम्स हैं, ये नियोन के ग्राउंड स्टेट के साथ स्ट्राइक करेंगे। मींस ये वाले F2 और F3 में जो हीलियम एटम प्रेजेंट होंगे, ये वाले, ये किसके साथ स्ट्राइक करेंगे, नियोन के ग्राउंड स्टेट एटम्स के साथ। हीलियम He स्टार प्लस नियोन जैसे स्ट्राइक करेगा, हीलियम कहाँ पे प्रेजेंट है, F2 और F3 में। इसका मतलब जो एक्साइटेड स्टेट में हीलियम है, दैट विल कोलाइड विद द नियोन एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट एंड मेक देम एक्साइट, और नियोन एक्साइटेड में कन्वर्ट कर देगा और हीलियम नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो नियोन एटम यहाँ प्रेजेंट थे, या तो वो E4 में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर आपके पास वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से लेके आपके पास E6 में शिफ्ट हो जाएंगे। तो नियोन स्टार का मतलब है E4 या E6 में चले गए। ये आपके पास हीलियम और नियोन की एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आयंस प्रोड्यूस हुए थे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह, दे आर नॉट कैपेबल टू शिफ्ट नियोन एटम फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट, दे आर ओनली eligible to shift helium atom present in the ground state to their excited state। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो आयंस की फॉर्मेट में प्रोड्यूस हुए थे, वो सिर्फ हीलियम को अपग्रेड कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में, नियोन वालों को अपग्रेड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम का एक्साइटेशन पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू नियोन। तो that is the reason why we select the helium neon ratio in the proportion of 10:1, or we can say 7:1, because helium का जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है वो कम है एज कंपेयर टू नियोन। हीलियम के जो एक्साइटेड स्टेट वाले एटम हैं वो आपके साथ नियोन के ग्राउंड स्टेट वालों को साथ स्ट्राइक करेंगे और उनको एक्साइट करेंगे हायर लेवल के अंदर। तो that is the reason why we select the helium as a 10 molecule and neon as a 1 molecule। ठीक है, अब जब नियोन वाले एटम आपके पास E4 और E6 में पहुंच गए, तो E6 से तीन तरह की ट्रांजिशंस होंगी। एक ट्रांजिशन होगी आपके पास E6 से E5, E6 से E5 कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ 3.39 माइक्रोमीटर की। दूसरी ट्रांजिशन हुई आपके पास E4 से लेके E3 के अंदर ट्रांजिशन, कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ 1.15 माइक्रोमीटर की होगी आपके पास। One thing noticeable regarding these two transition is that both the transition are not lying in the visible region। ये दोनों की दोनों visible region में lie नहीं करती। अब तीसरी transition है आपके पास E6 से लेके E3 के अंदर transition corresponding to the color which will emit the wavelength 6328। ये आपके पास red color के corresponding wavelength है और ये laser action के लिए responsible है आपके पास। और special thing about this one wavelength is that कि this one is lying in the visible region। तो जब एटम आपके पास E3 लेवल पे आ जाएगा, तो E3 से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के द्वारा E2 पे आएगा और E2 से द्वारा E1 के ऊपर आ जाएगा। जब ये E1 के ऊपर द्वारा आ जाएगा, तो हम क्या, वही प्रोसेस द्वारा स्टार्ट हो जाएगी। हीलियम एक्साइटेड वाले इसके साथ स्ट्राइक करेंगे और
स्ट्राइक करेंगे और इनको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, नियॉन एक्साइटेड में, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। दिस वन इज द वर्किंग ऑफ ए हीलियम एंड नियॉन लेजर। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आज का जो पार्ट था, दैट वन इज द एडवांटेज ऑफ ए हीलियम और 4 लेवल लेजर इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ए 3 लेवल लेजर। बीन फर्स्ट एडवांटेज इज इट्स डायरेक्शनलिटी एंड मोनोक्रोमेटिसिटी। we know that ki directional helium neon laser is highly directional, means less divergence. Due to its less divergence, it is used to measure the long distances, and it is highly monochromatic, means जो लाइट आउटपुट में हमें मिल रही है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक का मतलब है रिलेटेड टू ए सिंगल वेवलेंथ। ये लाइट हाईली मोनोक्रोमेटिक है। सेकंड है आपके पास कंटिन्यूस लाइट। आपके पास जो हीलियम नियॉन लेजर की आउटपुट है वो कंटिन्यूस है, इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ लाइट गेटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ ए पीक। जैसे हमने रूबी लेजर के केस में किया था, पल्स की फॉर्मेट में हमारे पास लाइट एमिट आउट हो रही थी, बट हीलियम नियॉन लेजर के केस में हमें कंटिन्यूस लाइट मिलेगी विदाउट एनी ब्रेक्स। दिस वन इज द सेकंड एडवांटेज। थर्ड वन है लेस पावर रिक्वायर्ड फॉर द पंपिंग। गैस लेजर के केस में पंपिंग में कम पावर की ज़रूरत है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर के केस में हमें ज़्यादा पावर पंपिंग रेट की ज़रूरत थी। आपको अगर ध्यान हो, रूबी लेजर की एक डिसएडवांटेज ये थी आपके पास कि उसमें हाई पावर ऑफ पंपिंग रेट की रिक्वायरमेंट थी। तो 4 लेवल लेजर के केस में पंपिंग रेट स्मॉल चाहिए हमें as compared to 3 level. So this one is the advantage. Now to prepare this one helium neon laser article as examination point of view, I am I am providing you a these one notes taken from the book Optics by अजय घटक, और इसके लिए मैंने आपको ये 26.4 आर्टिकल कंप्लीट हीलियम नियॉन लेज़र है, मैंने इसी के हिसाब से इस आर्टिकल को एक्सप्लेन किया है। दिस वन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन स्पाइट ऑफ अदर बुक्स। एंड एट द एंड लास्ट वन मैंने इसमें एडवांटेज जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि हाईली आपके पास डायरेक्शनल है या फिर मोनोक्रोमेटिक है, ये सारी चीज़ें इस यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में है। तो दिस one is all about the helium neon laser. Thank you students.